أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اے اللہ، اس کتاب میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ لیجئے۔ جی کلاس، تو آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 5 شروع کر رہے ہیں، اور اس لیسن میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو عربی گرامر کا بہت ضروری حصہ ہے، سمجھیے اگر یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو بہت سارے جملے، بہت ساری آیات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ اس مرکب کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، لیکچر اٹینڈ کر چکے ہیں، تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ریویژن کریں تمام باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اگر کہیں پر آپ کی کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو وہ اس سبق کے ذریعے دور کی جائے۔ تو سب سے پہلے میں بلاؤں گی زہرا کو۔ آئیے زہرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی زہرا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے آپ نے اب تک کتنے مرکب پڑھ لیے ہیں؟ ہم لوگ یعنی مرکب ناقص میں 4 رہیں گے، پھر مرکب تام الگ ہو جائے گا تو 5۔ جی، مرکب ناقص کتنے پڑھ چکے ہیں؟ 4۔ 4، یعنی چاروں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جی گڈ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ناقص اور تام کی بات کی مجھ سے، جی یعنی آپ نے 2 مرکبات کہے، ایک آپ نے کہا مرکب ناقص، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی، وہ جو مین ڈویژن ہے ٹھیک ہے، اور مرکبات کا۔ ایک آپ نے کہا مرکب تام۔ جی، مجھے مرکب تام کی تعریف بتا دیجئے، کیا ہوتا ہے مرکب تام؟ مرکب تام یعنی اس کو جس میں بات ہم کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے تو اس کو مرکب شاباش۔ تام کہتے ہیں، ہوں، اور مرکب ناقص میں اس میں بات پوری طرح سے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ادھوری نہیں رہتا آتی۔ مرکب تام کے لیے اگر ہمیں کوئی مثال دینی ہو تو ہم کیسے دیں گے اس کو؟ ہے۔ لائک زید لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، زید لڑکا ہے، یعنی ایک جملہ اسمیہ پورا جس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اس کو مرکب تام کہیں گے، تام، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، یعنی 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جی، یا ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے، ہاں اس کو مرکب مرکب تام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ یا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو تو پھر ہم اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ناقص یعنی نقص زدہ، جس میں ڈیفیکٹ ہے، بات پوری ڈیفیکٹ، سمجھ نہیں آ رہی ہے نا۔ اور جی تام، تمام سے یاد رکھیے، کمپلیٹ سے تام، بات پوری ہو رہی ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے سامنے یہ جو ایک جملہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس پورے جملے کو مرکب تام میں لے جائیں گی یا مرکب ناقص میں؟ اس کو ہم لوگ مرکب ناقص میں لے کر جائیں گے۔ پورے جملے کو؟ کون سا والا یاد درس یہ؟ کتاب محمد حاذا اچھا، یا اوکے، یاسر، اس کو آپ مرکب تام کہیں گی یا مرکب ناقص کہیں گی؟ کیا ہے اس کو ہم لوگ تام تام، یہ پورا ایک مرکب، جملہ بن رہا ہے ہاں نا؟ جی جی، بالکل، پورا ایک جملہ ہے نارمل، جس میں ہاں آپ کو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، جی ٹھیک جی، ہے نا؟ ہوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرکب تام میں مزید کتنے مرکبات ہیں اور وہ کس کس طرح سے آئے ہیں،
اور ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے. ٹھیک ہے زورا؟ جی. چلیں پڑھیں پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے. سعید ہم، کتاب محمد ہذا یا یاسر. کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اے یاسر، کیا ہم، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ شاباش، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ اس کا ترجمہ اگر اس طرح کیا جائے، کیا یہ کتاب محمد کی ہے، کیا یہ ترجمہ درست ہوگا؟ جی. کیا یہ کتاب محمد کی ہے؟ محمد کی ہے. یا پھر یہ ترجمہ درست ہوگا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے. کا کون سا کی ترجمہ کے درست ہوگا؟ کون سا محمد ترجمہ درست ہوگا؟ کی کیا کا یہ کا کا محمد کی کتاب کا ہے؟ دیکھیے دو ترجمے میں کا نے لکھے آپ کے سامنے. کیا ہاں، یہ محمد کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی ایک ادھر ایک مذکر آ گیا تو شاید ٹھیک ہے. کا محمد کا اچھا کتاب. نہیں نہیں، کا کے چکر میں اوکے. نہیں جائیے آپ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں، ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ترجمہ آپ نے لکھا کیا یہ محمد کی کتاب ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے ترجمہ لکھا کیا یہ کتاب محمد کی ہے. کیونکہ ریلیشن دکھایا جا رہا ہے یہاں اب پہ تو. دیکھیے اس میں پہلے جملے میں یہ یعنی حاذا کا ترجمہ جو ہم نے یہ کیا ہے، جی اس کا ترجمہ ہم محمد کے ساتھ لگا رہے ہیں. اس اشارے کو ہم محمد کے ساتھ لگا کے ترجمہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی کیا یہ ہاں محمد کی کتاب ہے. جبکہ دوسرے والے میں ہم اس حاذا کو کس کے ساتھ لگا رہے ہیں؟ کتاب کے ساتھ. کیا یہ کتاب محمد کی ہے یاسر؟ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہم، ہے آپ لوگوں کے طریقہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو باریکی؟ جی. کس کا پہلے ہے؟ جملے میں ہم. پہلے جملے میں ہم نے اس حاذا کو محمد کے ساتھ ترجمے میں لگا دیا ہے. کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے. جی. اور دوسرے ترجمے میں ہم نے حاذا کو کتاب کے ساتھ لگا کے ترجمہ کیا ہے کہ کیا یہ کتاب محمد کی ہے. ہم. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کون سا ترجمہ درست ہے. ملکیت کا دیکھنا ہے، کس کا ہے، کس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے اور کس ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے پہلا جملہ درست ہے ترجمے کا یا دوسرا؟ پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ کیسے ہم اس کو کی. سمجھیں گے کہ کون سا ترجمہ درست ہے. ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سا ترجمہ درست ہے؟ کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ ہم، کیا یہ کتاب محمد کی ہے نا؟ دونوں طرح سے جی ترجمہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے درست ہوگا. ٹھیک ہاں ہے. ہاں ایسے دیکھ. جی ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو دوسری لائن لکھی ہے نا میں نے، کیا یہ کتاب محمد کی ہے، یہ درست ترجمہ ہے. اور اچھا. یہ کیا یہ محمد کی کتاب ہے، یہ غلط ترجمہ ہوگا. اب ہم اس کو اوکے. سمجھیں گے کہ یہ کیسے جانا اور پہچانا جائے گا. جی ٹھیک ہے. جی یہ باریک سا فرق ہے جو ہم نے سمجھنا ہوگا. سب سے پہلے چلیں، آپ نے یہ جملہ پڑھ لیا اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی ہم نے درست ترجمہ کر لیا کہ کیا یہ کتاب محمد کی ہے. یاسر سے پوچھ رہا ہے سعید. ہم. اب مجھے بتائیے اس جملے میں مرکب آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ کتنے مرکب نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایک آپ کو مرکب ہذا نظر آ رہا ہے اضافی. اور کوئی مرکب ہے؟ ہذا یاسر. نہیں ہے. اور نہیں. کوئی سا بھی مرکب نہیں ہے. آپ نے ہاں چار مرکبات اگر پڑھ لیے ایک. ہیں جی تو پھر تو کوئی اور مرکب نہیں ہے اس میں، ہے نا؟ جی آپ نے ایک مرکب دیکھا اور آپ نے اس کو پہچانا کہ یہ مرکب اضافی ہے. جی. مرکب اضافی کتنے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے؟ دونوں ہیں اس میں پارٹس، مضاف اور جی، مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. کتاب محمدن میں مضاف کون سا ہے اور مضاف الیہ کون سا ہے؟ مضاف کتاب ہے اور محمد مضاف الیہ ہے. شاباش. کتابو یہاں ہم مضاف. مضاف کے طور پر لیں گے اور محمدن کو ہم نے مضاف الیہ کے طور پر لیا.
ٹھیک ہے، مضاف الیہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ مضاف الیہ کو ہم وہ حالت ایک مجرور اسٹیٹ میں رہے گا کبھی بھی وہ. ہمیشہ، ہمیشہ، جی ہمیشہ. ہمیشہ آپ کو مضاف الیہ حالت جر میں ملے گا، چاہے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور جی مضاف کی کتنی اعرابی حالتیں ہو سکتی ہیں؟ وہ مرفوع یا منصوب یا جر میں مجرور بھی ہو سکتا. مجرور، تینوں حرکتیں، تینوں. تینوں شکلیں اختیار کر سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یا اس کے آگے کون سا لفظ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اس جی حساب سے وہ حرکت لے گا، یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے، رائٹ؟ جی مضاف کے اوپر کوئی سی بھی حرکت آ سکتی ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ جی اب یہ دو اجزاء ہو گئے مرکب میں، مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ دو مل کر پھر کسی بھی مرکب کو آپ مرکب اضافی ڈکلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی. مضاف کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ مضاف کا وسعت وسعت معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ اعراب جملے میں کیسا ہے اس کے اوپر پکڑتے رہتا ہے. نہیں، مضاف کا مجھے بتائیے آپ اس مضاف وقت مضاف کی اعرابی حالت کیا کنسیڈر کی جاتی ہے؟ اعرابی حالت مرفوع ہم ہوگا. مرفوع ہوگا، اور وسعت کیا ہوگی؟ حال مرفوع تو ہوگا بائی ڈیفالٹ، یعنی معرفہ. معرفہ، ایگزیکٹلی، شاباش، یعنی اس کی وسعت آپ کو معرفہ کنسیڈر کریں گے، مضاف معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھیں ہاں پچھلی سے پچھلی کلاس میں، جی پڑھی تھیں، یاد ہے آپ کو جی جی. کہ اسم علم. کون کون سے ہاں اسما معرفہ میں شمار کیے جاتے ہیں؟ دہرا دیجئے. اسم علم، اسم ٹھیک ہے، ضمیر، اسم اشارہ، ہوں، معرف باللام اسم، شاباش، حرف ندا منادہ. ایک مس ہو ندا گیا. منادا جو ہم نے پڑھے تھے، ہم نے ندا منادا اسم نہیں اس میں موصول. ڈسکس کیا تھا، موصول ہم نے اسماء موصول کو ڈسکس کیا موصول تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں. جی اسماء موصول کو ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے؟ 6 ہو گئے جی جو ہاں. ہم نے پڑھے تھے، اب جیسے جیسے ہمارے سامنے آتے جائیں گے ہم اس کو دیکھتے جائیں گے. 7واں نوٹ کیجئے، مضاف الی المعرفہ، یعنی مضاف کو بھی معرفہ کنسیڈر کیا جائے گا، معرفہ میں شمار کیا جائے گا اگر وہ معرفہ کی طرف مضاف بن کر آ رہا ہے تو. اب آپ دیکھیے محمد معرفہ ہے نا اس میں علم، جی ٹھیک ہے؟ تو یہ کتابو مضاف ہے معرفہ کی طرف، آئی سمجھ میں؟ مضاف الی المعرفہ کا مطلب کتابو مضاف ہے معرفہ کی طرف، تو ایسا مضاف جو معرفہ کی طرف مضاف ہے، مضاف الی المعرفہ، وہ کنسیڈر کیا جائے گا معرفہ، ٹھیک ہے؟ جی اس مضاف کو آپ معرفہ کنسیڈر کریں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ یاد رکھیے. دوسری بات جو ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ مرکب اضافی میں جب آپ کو اشارہ ملے تو وہ اشارہ کس کے ساتھ لگے گا؟ یہ یعنی آپ کو اس جملے میں اشارہ نظر آ رہا ہے کتاب محمد مرکب اضافی کے بعد، اب ہمیں ترجمہ کرنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس اشارے کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا جائے گا، مضاف کے ساتھ یا مضاف الیہ کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم نے 2 جملے لکھے تھے. ہاں ایک جملے میں ہم نے مضاف الیہ کے ساتھ لگایا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے، اس حاضہ کو مضاف الیہ کے ساتھ لگایا، اور دوسرے ترجمے میں ہم نے حاضہ اشارے کو مضاف کے ساتھ لگایا، کیا یہ کتاب محمد کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے کیا سمجھا تھا کہ کیا یہ کتاب محمد کی ہے درست ترجمہ ہے. درست ہے. یاد رکھیے، پوائنٹ یاد رکھیے، جب بھی آپ کو مرکب اضافی کے بعد یعنی مضاف الیہ کے فوراً بعد کوئی اشارہ ملے تو وہ اشارہ مضاف کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اس جی اشارے کا ترجمہ مضاف کے ساتھ کیا جائے گا. جی
ठीक है, जी। इस तरह से है ये थी। और अगर आपको ये इशारा मुजाफ और मुजाफ इलैहि के दरमियान मिले, तब वो इशारा मुजाफ इलैहि के साथ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जी। तब आप तर्जुमा उस तरह करती, क्या क्या ये मोहम्मद की किताब है, हम्म, फिर करती। ठीक है, लेकिन अब चूंकि मुरक्कब मुजाफ इलैहि के बाद आपको इशारा मिला है, तो उस इशारे का कनेक्शन डायरेक्ट मुजाफ के साथ मुसाफ। होगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। आप जी। सबको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तर्जुमे के लिए, आप सबको ये बात आनी चाहिए। ठीक जी। है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, गुड, हो गया माशाल्लाह। आइए जहरा, जहरा जावेद। थैंक यू जोरा। वही। जज़ाकल्लाह खैर। जी, जहरा, आवाज नहीं आ रही जहरा आपकी, मुझे लग रहा है आपके नेट में इशू है। मैम अब आई है? जी, आप लोग हेडफोन्स लगाकर क्लास जरूर लें, लेकिन जब आपकी टर्न आए तो हेडफोन्स निकाल दें, हैंड्स फ्री हेडफोन्स। ठीक है जी। नहीं मैम ज़ारा, पढ़ो। बहुत बहुत ज्यादा आपकी डिस्टरबेंस आ रही है। पढ़ें, चलें इसको, इसी को मुझे बताएं। आपको कोई क्लियर कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक जो मैंने बताया उसमें? नहीं मैम जी, आ गई। ठीक है, चलें इसी जुमले में एक चीज और भी अभी समझने की बाकी है, और वो है या सिरु। जी। ठीक है, ये जो या है, ये कौन सा हर्फ है? मैम ये निदा। हरफे निदा। हाँ जी। और ये यासिरु को हम क्या टर्म देंगे, क्या कहेंगे? मैम हर्फ मनादा। मुनादा, शाबाश। और इस तरह हम निदा और मुनादा, इस टर्म को निदा मुनादा कहते हैं। अब याद रखिए कि निदा मुनादा भी मारफा में ही शामिल किया जाता है। जो अभी हमने 7 अस्मा देख लिए, मारफा की अकसाम 7 देख ली, और अब ये 8वीं जो है हरफे निदा, निदा मुनादा, ये भी मारफा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जी मैम। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर या सिरू पर तनवीन हल्की क्यों है, या सिरुन क्यों नहीं है? मैम ये मुंसरिफ गैर मुंसरिफ इसमें है इस वजह। हम्म, क्या मैम वजह है? क्योंकि हम्म, मैम मुनादा हल्का होता है इसलिए। हाँ जी, ये है इसका असल रीजन। जब भी मुनादा आएगा, उसकी तनवीन हल्की कर दी जाएगी। या के जी। बाद जब मुनादा लाया जाता है तो तनवीन हल्की कर दी जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखिए, जहन में रखिए। चलें, अब ये जो जुमला है जो आपने पढ़ा, आ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिरू, ठीक है, इसका जवाब क्या दिया जा रहा है? यासिरुन ला हादा किताबु हामिदिन। ला हम्म, नहीं, ये किताबु हामिदिन, ये किताब नहीं, ये किताब हामिद की है। हाँ नहीं, ये क्या ला। तर्जुमे में गलती की आपने? ये किताब हामिद की है। जी मैम। हम्म, ये मैम सही किताब नहीं। हामिद की है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये किताब हामिद की है करेंगी, या ये हामिद की किताब है करेंगी? मैम ये किताब हामिद की है। तो ये किताब हामिद की में हाजल किताबु आएगा ना? जी मैम। नहीं, मैम फिर ये। जी मैम। हाजल किताबु हामिदुन, अब है। तो फिर तर्जुमा होगा ये किताब हामिद की है। जी मैम। क्योंकि ठीक है ना? वो। जी मैम इसमें वो इशारा बन जाएगा ना, मुरकब हाँ, इशारी बन जाएगा। ये हामिद की किताब है, मुरक्कब इशारी का तर्जुमा कीजिए आप। ये हामिद की किताब है। कैसे हम इसको समझेंगे? ये जुमले का जरा मुब्तदा खबर निकाल के बताइए। मैम हाजा जो है वो मुब्तदा और किताब हामिदिन मुरकब इजाफी होके हाँ, खबर। खबर। तो अब तर्जुमा आप इसी तरह करेंगी ना, ये हामिद की किताब है। ये ठीक हामिद है, की किताब। हाँ, जी मैम। मुब्तदा खबर के हिसाब से भी तर्जुमा ये हामिद की किताब
किताब है होगा, बिल्कुल ठीक, शाबाश। मुरक्कब इजाफी के तर्जुमे में थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से करेंगी तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है सारा, थैंक यू सारा। आइए शाहीना, आपका असल में साउंड का थोड़ा सा है मसला, जी जी म्यूट कर अस्सलाम लीजिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जी शाहीना, अभी तक जो मैंने बताया सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा खास तौर से हमने ध्यान लगा से करना है कि किस तरह से किया जाएगा। जी चलें, आगे क्या जी जुमला है? सईदुन आइना किताबु मोहम्मदिन। हम्म। हम्म। सईद पूछ रहे हैं मोहम्मद की किताब कहाँ है। शाबाश, वेरी गुड। मोहम्मद की किताब कहाँ है? अब देखें इस जुमले को, इस जुमले में ये ऐना, ये कौन सा इस्म है या हर्फ है, क्या है ये? सबसे पहले तो ये बताइए। इसम है बाजी। इस इस्म है, कौन सा इस्म है? इसमें इस्तफाम। इसमें इसमें इस्तफाम। इस्तिफाम, शाबाश। यहां पर ये इसमें इस्तिफाम क्या स्टेटस ले रहा है? यहाँ पे खबर की। शाबाश, खबर मुकद्दम। ठीक है, खबर जी मुकद्दम। खबर और मुकद्दम जी। मुब्तदा मौखर आप किसको बना रही हैं? मुरकब इजाफी को किताब शाबाश, किताबु मोहम्मदिन। मोहम्मदिन को आपने मुब्तदा मौखर बना दिया। किताबु हल्का क्यों है? ये मुजाफ है इसलिए क्योंकि ये मुजाफ हल्का शाबाश, होता है। वेरी गुड। किताबु की का वुसअत क्या है? किताबों की अ, वुसअत बताइए। जी मार्फा। नकरा है या जी मारफा है? मार्फा है। मारफा है, तो इसके ऊपर अलिफ लाम क्यों नहीं नजर आ रहा हमें? जी क्योंकि मुजाफ में कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होती। शाबाश, हल्का रखना होता है, ना तो तनवीन आएगी और ना अल। जी यासिर बोल रहे हैं वो अ, हम्म, मकतब के नीचे। वो मकतब के नीचे। वो अ, मकतब के नीचे है, वो ठीक न- है, वो बिल्कुल मकतब के ठीक। अब नीचे। इस हुनाका का तर्जुमा आप कैसे करेंगी? ये वहाँ वहाँ कहते हैं ना वहाँ। वहां, एग्जैक्टली exactly। वो वहां मकतब के नीचे है। अब उर्दू में इसको एडजस्ट कर देंगी ना आप? ठीक है, जी जी। हुनाका वहां। और अगर यहां कहना होगा तो फिर क्या बोलेंगे? हम्म, हुना, होना। जी 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 सिर्फ होना। हुना। ठीक है, हुना का मतलब यहां, और हुना का वहां। हुना हेयर, हुना का देयर। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। अब जवाब जो आपने पढ़ा हुआ तहतल मकतबी हुना, इस मुझे बता। हुआ तो मुब्तदा हो जाएंगी। ठीक है। और ये तहता तहतल मकतबी हो गई मुरक्कब इजाफी। तहता मुजाफ अल मकतबी मुजाफ अलई। हम्म, ठीक अ, है। और इसको तो क्या बनाया है आपने? अ, ये हो जाएगी बाजी। शिबु जुमला खबर, शुभ जुमला खबर। ऐसे ही है ना? जी अच्छा, ठीक। जी जी ये आप जुमला देखिए, ये जो खबर। ताहता है आपने इसको खबर बनाया और आपने इसको मुजाफ बनाया, बिल्कुल ठीक। ओरिजिनली इस को आप क्या कहेंगी? ये मंसूब क्यों नजर आ रहा है आपको? खबर की जो इराबी हालत होती है वो तो मरफू होती है पेश के साथ। यहां जी पर आपको ये जबर के साथ नजर आ रहा है, क्या, क्यों? ये इसम ज़र्फ है। शाबाश, ये दरअसल जर्फ है, इसमें जर्फ नहीं, ये ज़र्फ है। जर्फ है। ठीक है, इसमें जर्फ में और जर्फ में फर्क होता है, ठीक है। इंशाल्लाह ओके। वक्त के साथ वो भी हम सीखेंगे। ये जर्फ है, ठीक है, जी यानी जगह का बता रहा है ना, जर्फ जमान, जर्फ मकान, जी जी दो तरह के होते हैं ना जर्फ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि किधर है, तो मकतब के
मेज के नीचे है। अब बताइए ظرف जमान में जाएगा या मकान में जाएगा? ये मकान यानी जगह मकान, को बता रहा है या जमान वक्त को बता रहा है? ये मकान में जाएगा, ज़र्फ़ मकान है ये। हाँ, ظرف मकान। इसी तरह हुनाका भी ظرف है। ठीक है। जी जी। ये कौन सा ظرف हो गया, मकान या जमान? ये भी ज़र्फ़ मकान। ظرف मकान, शाबाश, क्योंकि ये भी जगह को ही बता रहा है ना। जी। तो ظرف हमेशा आपको मंसूब नजर आएंगे। ताहता, इंदा, और बताइए फौका, कौन कौन से होते हैं? फौका, फौका, शाबाश, अमामा, अमामा। है जी ना। जी। ये सारे आपको जबर के साथ ही मिलेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये शिबू जुमला खबर बनते हैं और हमेशा मुजाफ मुजाफ इलैहि की सूरत में आपको नजर आएंगे। वेरी गुड शाहीना, वेल डन। आइए तहसीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। तहसीन पढ़िए, क्या जी, है अगला? सईद आइना दफ्तरु हम्म। अम्मारिन। सईद पूछ रहा हम्म। है कहाँ है रजिस्टर, इसको कहेंगे दफ्तर। हाँ जी, जी, रजिस्टर कह दें, बिल्कुल रजिस्टर अमार कह दें। का रजिस्टर कहाँ है? ये मुब्तदा और खबर कैसे निकालेंगी? आइना इसमें वो खबर खबर मुकद्दम। बनेगी, और हम्म। दफ्तरु अमारिन जो है मतलब खबर मुकद्दम, और ये शाबाश, मुब्तदा ठीक है, मुअख्खर। परफेक्ट दफ्तरु हो गया। अमारिन। अगला चलिए, जवाब क्या मिल रहा है? यासिरुन हुआ अला मकतबी मकतबिल मुदर्रसी। मुदर्रिसी, यासिर जी। हम्म। जी, यासिर ने कहा वो अ, मेज के ऊपर, टीचर उस्ताद के मेज के ऊपर है। हाँ जी, वो उस्ताद की मेज पर है। मेज के, जी शाबाश। मेज पर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अम, शाहीना साथ है ना मेरे? नहीं, नहीं, तहसीन। तहसीन साथ है। जी तहसीन, तहसीन आपने पीछे देखा, जी यहाँ था ताहतल मकतबी, जी जी ऐसे ही जी। है ना? ठीक है। यहाँ पर अलल मकतबी क्यों नहीं आया, अला मकतबी क्यों आया? ये अला ये हमें जर। ये तो जी। हर्फ जर है, ठीक है। हुआ अलल मकतबी क्यों नहीं आया? अला मकतबिल मुदर्रिसी क्यों आया? क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर? अलिफ लाम क्यों नहीं लगा हुआ? हमें वजह समझनी है ना। दुरुस्त लिखा हुआ जी है जी। अला मकतबी, बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है, लेकिन हमने हाँ ये जी। सोचना है ना कि यहाँ जी अलिफ जी। लाम क्यों नहीं दाखिल हुआ हुआ है, अल मकतब क्यों नहीं आ रहा? किसी को है आइडिया? ये जर अच्छा, की वजह से अला को जर पे ऐसे ले देखिए रहा है। जर में तो चला गया मकतब। आप आप मजरूर हालत में लेके चली गई जी इसको। जी। ठीक है, अलल मकतबी भी हाँ जी। मजरूर हालत में जाता, अला तो मजरूर करता है ना। इस जुमले में जी जी। मुब्तदा खबर निकालिए, फिर हो सकता है आपको समझ में आ जाए। हुआ इसमें मुब्तदा है, ठीक है, मुब्तदा हो गया, और खबर क्या है? और अला मकतबिल मुदर्रसी। ये पूरी खबर हो गई। ठीक हाँ है। जी, पूरी खबर है जी। अच्छा, अब ये जो खबर है इसमें कितने मुरक्कब आपको नजर आ रहे हैं? हुआ मकतबिल कितने मुरक्कबात हैं इस खबर के अंदर? कौन कौन से मुरकबात, मुरक्कब नजर आ रहे हैं? एक तो मकतबिल मुदर्रसी है। मकतबिल मुदर्रिसी है, कौन सा हाँ जी। मुरक्कब है ये? ये ये मुरकब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है, तो मकतब यहाँ क्या बन रहा है? अ, मकतब यहाँ पे मुजाफ। शाबाश, मुजाफ बना। अब आपके समझ में आई जी कि अल क्यों नहीं आया है? जी जी। हाँ जी, उसके साथ वो अल और वो नहीं लगता। नहीं आएगा, इसलिए हाँ यहाँ जी। पर मकतब पर अल दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि मकतब यहाँ मुजाफ बन रहा है, और जी ये जी मुजाफ हालत जर में चला गया है, हरफ जर अला की वजह से। जी जी, अला की वजह हमने से। शुरू में डिस्कस किया था कि मुजाफ तीनों हालतें लेता है, हाँ जी। रफा नसब जर।
اور جی اس کے जी پیچھے وجہ دیکھنی پڑے گی کہ وہ کس وجہ سے مجرور ہوا، تو حالت جر میں اس لیے گیا کہ اس کے پیچھے حرف جر موجود ہے. ٹھیک ہے، حرف جر کلیئر جی جی ہوا بالکل تحصیل؟ تو اب جی جی آپ نے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور نوٹ کرنی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، تو کلیئر ہوتی ہیں، قواعد کلیئر ہوتے ہیں، اور آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہوتے ہیں معاملات. ٹھیک ہے، تو جی اب اس میں جی جی دو مرکبات ہیں دراصل. دو دنوں کی بات ہے. ایک تو ہم ہوا ایک تو آپ الل نے ایک تو آپ نے مرکب اضافی، اضافی. جی جی اور دوسرا مرکب کون سا ہے؟ جار مجرور یہ کون سا مرکب مرکب ہوگا؟ شبو جملہ نہیں، جار مجرور مرکب کون سا ہوگا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. تو دو مرکب ہو گئے نا. جی جی ٹھیک ہے، اچھا مرکب مجھے بتائیے کہ یہ المدرسی جو مجرور نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہی ہوتا ہے نا. شاباش، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور جی ہے. جی کیا جی یہ علا کی وجہ سے بھی مجرور ہے؟ نہیں. نہیں. شاباش، ویری گڈ. علا کا اثر صرف اور صرف مضاف قبول کرے گا. جی جی صرف مضاف پر اس کے اثرات آئیں گے، مضاف الیہ پر کوئی اثر نہیں آتا. مضاف الیہ ہمیشہ آپ کو حالت جر میں ہی ملے گا. جر میں ماشاء اللہ، نظر. ویل ڈن جی تحسین، بہت اچھے. آئیے تسمیہ. تھینک یو تحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم. وعلیکم السلام. جی تسمیہ، آل کلیئر؟ کوئی کنفیوژن ابھی جی تک؟ میم. جی الحمد للہ کلیئر ہے میم. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. چلیں اب آپ اگلا جملہ پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ سعید ہم قلم من ھذا یا علی. ہم سعید نے کہا ہم اے علی یہ ہم قلم کس کی ہے؟ یہ قلم کس کا ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ آپ نے کیا. آپ نے اس حاضہ اشارے کو دیکھیے، پھر سے اشارہ آ گیا مرکب اضافی میں. جی اس کو آپ کہاں لے گئیں؟ کس کے ساتھ لے گئیں اس حاضہ اشارے کو؟ یہ قلم کے ساتھ. یہ قلم کس کا؟ قلم مضاف کے ساتھ لے گئیں. جی ایسے ہی ہے نا؟ جی تو میم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلم مضاف ہے، تو یہ من جو ہے، یہ من کیا جی ہے یہاں پر؟ یہ حرف اسماء استفہام. اس میں استفہام ہے. ٹھیک ہے، تو جی یہاں تو پر بن کیا رہا ہے؟ یہ مضاف الیہ بنے گا میم. من. شاباش، ویری گڈ. یہ اس میں استفہام قلم من میں من، یہاں جی مضاف الیہ بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے اس من کا؟ من کا اعراب میم مجرور ہے یہ. مجرور ہے. شاباش. ہم نے جی جب اسماء استفہام پڑھے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اسماء استفہام مبنی ہوتے ہیں. جی یاد مبنی آیا ہوتے آپ لوگوں کو؟ ہیں. جی میم. ٹھیک ہے، مبنی ہوتے ہیں، کوئی ان کا اعراب نہیں ہوتا. وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس حساب سے وہ اعراب لیتے ہیں. اور جی دوسرا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ ان کی وسعت نکرہ. نکرہ ہوتی ہے. جی نکرہ ہوتی ہے. اسماء استفہام کی وسعت نکرہ ہوتی نکرہ. ہے. ٹھیک ہے، لیکن من اور ما دو ایسے ہوتے ہیں جو مبتدا بہرحال بن سکتے ہیں، وہ تو ہم ایک الگ ٹاپک ہے. جی یہاں پر جو میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ، جو ہم نے شروع میں ایک پوائنٹ کیا، مضاف المعرفہ، ہے جی نا؟ مضاف الی المعرفہ. جی یعنی وہ مضاف معرفہ ہوتا ہے جو معرفہ کی طرف مضاف بن کر آئے. ٹھیک ہے، جی اب مجھے بتائیے، یہ قلم من میں من تو ہے نکرہ، جی تو اب یہ مضاف معرفہ کنسیڈر ہوگا؟ جی ہاں یہ ہوگا میم. ہم بالکل ہوگا. شاباش، جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ترجمہ کر رہی ہیں اس کو کس کے ساتھ؟ یہ مضاف کے ساتھ. ہاضا. مضاف کے ساتھ کریں گے. اچھا چلیں، اس کو فی الحال آپ رہنے دیں، یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ایڈوانس ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے مزید. اگلا جی جملہ کریں. علی ھذا قلم المدرسی. ہم
अली ने कहा ये टीचर की कलम है। हाँ, ये मुदर्रिस का कलम है, उस्ताद का कलम है। ठीक है, गुड जी हो गया। अगला जुमला पढ़ें। यहाँ पढ़िए। जी मैम। अगला जुमला क्या है? सईदुन अयना हकीबतुल मुदर्रिसी। सईद ने हम्म। कहा टीचर का बैग कहाँ है। टीचर का बैग कहाँ है? ठीक है, जवाब क्या मिला? अलीयुन हिया तहतल मकतबी। अली ने हम्म। कहा वो टेबल के नीचे है। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर हिया की जमीर क्यों इस्तेमाल हुई, हुआ क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? तो मैम वो है बेजान चीज के लिए। नो, बिल्कुल नहीं। मुन्नस। बेजान और जानदार वो तो माँ और मन का कॉन्सेप्ट है, वो तो हम सवाल करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो मकतब के नीचे है। अच्छा, चलें हम एम कादरी से पूछते हैं। जी। आप म्यूट करें। आइए एम कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए कि यहाँ पर हिया की ज़मीर क्यों इस्तेमाल हो, हो रही है? मैम ये हकीबतु मुन्नस अलामत शाबाश। मुन्नस है इसलिए। हाँ जी, ये हकीबतू चूंकि मोनस है, मोनस के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हिया की ज़मीर लाई गई, हुआ की नहीं लाई गई। ठीक है, बिल्कुल मामूली सी चीज, नोट करके रखें तस्मिया। अच्छा जी, अगला हम देखते हैं। अच्छा नहीं, ये तो एक्सरसाइज शुरू हो गई जी। पढ़िए। अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया। हम्म। सवालों के जवाब दीजिए। हाँ जी, आइना दिए गए किताब सवालात के जवाब मोहम्मद। दीजिए। हाँ जी, क्या है पहला सवाल? आइना किताब मोहम्मदिन। मोहम्मद की किताब तर्जुमा कहाँ कीजिए। है। मोहम्मद की किताब कहाँ है? हम सिर्फ तर्जुमे पे फोकस करेंगे, जवाबात आप लोग किताब में से देख चुकी हैं। मुझे बताइए इस जी। जुमले में जो सवाल है इसमें कौन सा मुरक्कब आपको नजर आ रहा है? मुरक्कब इजाफी। कौन सा है बताइए? किताब मोहम्मदिन। शाबाश, किताब मोहम्मदिन मुरक्कब इजाफी हो गया। गुड, नेक्स्ट पढ़िए। आइना किताब अम्मारिन। अम्मार हम्म। की किताब कहाँ है। शाबाश, इसमें कौन सा मुरक्कब है? इसमें भी मुरक्कब इजाफी है, किताब अम्मारिन। ठीक है, गुड हो गया। तीसरा सवाल। अइन हकीबतुल मुदर्रिसी। हम्म। टीचर का बैग कहाँ है। इसमें भी शाबाश, हकीबतुल मुदर्रिसी मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। पहले जो दो सवाल हैं, किताबु मोहम्मदिन किताबु अम्मारिन, जिसमें आपने दो मुरक्कब देखे, आप देखिए मोहम्मदिन और अम्मारिन मुजाफ इलैहि के तौर पर जो आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना? अस्माए जी मैम। अलम है, ऐसे ही है। ठीक है, अस्माए जी। अलम, अस्माए अलम मुजाफ इलैहि के तौर पर आ रहे हैं। क्या अस्माए अलम मुजाफ बनकर आते हैं? हम्म, जी क्या मैम। कहता है आपका कॉमन आपने। सेंस? अस्माए अलम मुजाफ बन सकते हैं? जी। नहीं। याद नहीं। रखिए, अस्माए अलम कभी भी मुजाफ नहीं बनते। ठीक है, आपको जी अस्माए अलम ठीक है। हमेशा मुजाफ इलैहि की जगह पर ही नजर आएंगे। एक अस्माए अलम मुजाफ नहीं बन सकते, और दूसरे जमायर, जमायर भी आपको जी। कभी भी मुजाफ बनते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, हमेशा मुजाफ इलैहि के तौर पर जरूर मिलेंगे, लेकिन मुजाफ नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके। जी। चलें, वेरी गुड। अब हम बुलाते हैं, ये किस नाम गुड। चेंज नहीं किया हुआ है, रेडमी टेनिस स्पोर्ट। आ जाएं और रीनेम जरूर किया करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम रेड, वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मे सलमा। तो फिर उम्मे सलमा। पता ऐसे हो गया। जी, आप रीनेम जरूर किया करें। हाँ जी, क्या है अगला सवाल? आइना हकीबतुल मुदर्रसी।
ये तो हम कर चुके हैं उम्मे सलमा। सवाल पढ़िए आगे, आपको जी सवाल मैम। नजर आ रहा है लिखा हुआ? नंबर 2, सवाल नंबर 2। अदीफिल हम्म कलिमतल ऊली उला। इलसानिया हम्म इलसानिया। अजिफिल अजिफिल कलिमतल जी ऊला इलसानिया। क्या करना है आपको? हाँ इजाफत देनी है पहले कलमे को जी दूसरे की तरफ। इजाफत देने का मतलब जी क्या हुआ? यानी मुजाफ बनाना है आपने। पहले कलमे को जी दूसरे की तरफ मुजाफ बनाना है। ठीक है। जी आपको जी। चंद कलिमात दिए गए हैं, पढ़िए ये लिस्ट क्या है कलिमात की। ये जो फर्स्ट वन है किताबुन मोहम्मदुन, ये वाली। हाँ जी, किताबुन मोहम्मदुन। किताबु ठीक है। मोहम्मदिन। नहीं, पहले आप देखिए ना, आपको कलिमात क्या दिए गए हैं? 2 कलमे दिए गए हैं ना आपको, एक किताबुन और एक मोहम्मदुन। ठीक है। हाँ सवाल क्या है? हाँ सवाल कहा गया है कि अजिफिल कलिमतल ऊला, पहले कलमे को इजाफत दीजिए। हम्म किसकी तरफ? हाँ इलसानिया, दूसरे की तरफ। दूसरे। पहले हाँ कलमे को मुजाफ बनाइए दूसरे की तरफ। अब आपने यहां जी पर इसको बना जी। दिया, यानी पहले कलमे को मुजाफ बनाने के लिए क्या करना पड़ा? की तनवीन हल्की किताबुन करनी को, पड़ी। हाँ, किताबुन को किताबू किताबु, तनवीन हल्की करनी पड़ी, शाबाश। और मोहम्मदुन को क्या करना पड़ा? उसे उसे जेर देकर उसे जाय बना दिया गया मोहम्मदिन। मोहम्मदिन, उसको मुजाफ इलैहि बनाने के लिए मजरूर किया गया। मुजाफ इलैहि इस बना, तरह ये, मजरूर हाँ किया जी, गया। इस तरह ये मुरक्कब बना। और तर्जुमा क्या बना? ये मोहम्मद की किताब। मोहम्मद की किताब, शाबाश। इसी तरह से इसको भी कीजिए, अगला जो लिखा है। मक्तबुन अल मुदस्सु। हाँ जी, अब इसको बनाइए। मक्तबुल हम्म मक्तबुल मुदर्रसी। मुदर्रिसी, रॉ के ऊपर देखिए जो तजदीद है ना, ये प्रिंट में होता है तजदीद मुदर्रसी। के नीचे नहीं, तजदीद के नीचे अगर हरकत लगी हो ना तो ये जेर होती है, और अगर इसके जी जी ऊपर जी। हरकत लगी हो फिर जबर होगी। ठीक है। तो अब चूंकि हाँ ये तजदीद के मिसप्रिंट नीचे हुआ है। है तो आप इसको जेर पे पढ़ेंगी। ठीक है, मुदर्रिस, जी मुदर्रिसी। जी जी ठीक है। जी। तर्जुमा कर दीजिए। टीचर का मेज। शाबाश, ठीक है, अगला भी कर दें। ये कलमु हामिदुन। ये कलमुन हामिदुन है तो ये कलमु हाँ, हामिदिन होता। शाबाश। तर्जुमा। हामिद का कलम। शाबाश, अगला। मिफ्ताहुन अल हम्म बैतु। हम्म मिफ्ताहुल बैती। शाबाश। तर्जुमा। ये घर की, ये घर, ये हम्म मिफ्ताह, घर की ये चाबी चाबी। और किला है। हाँ जी, घर की चाबी, मिफ्ताह चाबी। चाबी को कहते हैं जी। अगला कीजिए। बैतुन अब्बासुन। हम्म बैतु अब्बासिन। शाबाश। तर्जुमा। अब्बास का घर। नेक्स्ट। दुकानुन अत्ताजिरु। हम्म दुकानुल दुकानुत ताजिरी। शाबाश। तर्जुमा। ताजिर, ताजिर का दुकान। ताजिर की दुकान, गुड। ताजिर की दुकान शुक्रिया, मोहन। बहुत शुक्रिया जी मुसलमा। म्यूट कर ले। जज़ाकल्लाह मैम। राना आ जाइए। जी। जी, अगला पढ़िए। गुरफत जी, गुरफतुन अलीजू का हो जाएगा गुरफतु अलीजी। हाँ, अलीयुन है ना, बिल्कुल। जी गुरफतु जी अलीयिन, हाँ, तनवीन डालिए। अलीजिन। अली हाँ, अलीयिन। अलीजिन। तर्जुमा कैसे करेंगी? अलीजिन। अली का कमरा। अली का कमरा, ठीक है। आगे। बैतुल मुहंदिसु, तो हम्म इसका हो जाएगा बैतुल मुहंदिसी, हाँ जी, इंजीनियर का घर। इंजीनियर का घर, गुड। आगे। इसका हो जाएगा दफ्तरु सईदिन, गुड। सईद तर्जुमा। की किताब, सईद की किताब। शाबाश। सईद की का रजिस्टर या किताब, ठीक है। आगे। रजिस्टर। जी, इस्मुल वलदी, हम्म लड़के का नाम। माशाल्लाह। नेक्स्ट। मिन मिंदीलु यासिरिन,
यासिर का रुमाल। यासिर का रुमाल, शाबाश। नेक्स्ट। किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब। किताबिल क्यों किया आपने? और नहीं सॉरी, हम्म किताबु अल्लाही। किताबुल्लाही, हाँ जी। तर्जुमा अल्लाह की किताबुल्लाही। किताब। वेरी गुड राना, माशाल्लाह। आई एम श्योर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि जब हमें मुजाफ बनाना होता है तो फिर हम इस्म को हल्का कर देते हैं। यहाँ पर जितनी भी तनवीन आपको नजर आ रही है, आप सब ने उसको हल्का किया और उसको मुजाफ बनाया। जी बहुत शुक्रिया। चलें आ जाएं, किसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है? नाजिश को। जी बेटी, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए, नेक्स्ट कीजिए। ये कमीसुन अम्मारुन, हम्म कमीसु अम्मारिन, हम्म अम्मार की कमीज, कमीज। शाबाश, ठीक है। बिंतुन नेक्स्ट। बिंतुन अत्वबीबु, तो हम्म बिंतु त्वबीबु, डॉक्टर की हम्म बेटी। क्या गलती कर रही हैं? बिन तो सॉरी सॉरी, तबीबू। हम्म तबीबी, सॉरी, बिंतु त्वबीबी, मुजाफ इलैहि मजरूर हो जाएगा, शाबाश। डॉक्टर की डॉक- बेटी, डॉक्टर की ठीक है। बेटी। हाँ जी, नेक्स्ट। सरीरुन खालिदुन, हम्म सरीरु खालिदिन, खालिद का हम्म बेड या खालिद की शाबाश चारपाई। शाबाश। नेक्स्ट। मिफ्ताहुन अस्सय्यारतु, हम्म मिफ्ताहुस सय्यारती, गाड़ी की हम्म चाबी। गाड़ी की चाबी। दोनों कलिमात को आपने जब मुरक्कब में ढाला, मुरक्कब इजाफी में, तो मुजाफ हल्का किया और मुजाफ इलैहि को आप मजरूर हालत में लेकर गई, जो बुनियादी कायदा है मुरक्कब बनाने का। और तर्जुमा भी आपको माशाल्लाह समझ आया। जी अगला सवाल क्या लिखा है? इकरा वक्तुब मअ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, रीड एंड राइट each हम्म of the following phrases vocalizing the last letter of both of the words. अब देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको दो कलिमात तो दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रेज पूरा बना हुआ है या मुरक्कब बना हुआ है, लेकिन इन पे कोई हरकत नहीं लगी हुई है। तो जी इनके अवाखिरिल कलिमात का मतलब यही है कि कलिमात के आखिर में जो भी हरकत लगानी है, जो भी मुनासिब आप समझती हैं, वो लगाएं यहाँ पर। जी। कीजिए नाजिश। बाबुल बाबुल मदरसती, गुड। हिमा हिमारुर रजुली, तर्जुमा साथ साथ। बाबुल मदरसती, तर्जुमा। स्कूल का दरवाजा। हाँ जी, नेक्स्ट। हिमारुर रजुली, आदमी, हम्म ऐसा क्या होगा? आदमी का हिमार घोड़ा ना, आदमी का घोड़ा। नहीं, घोड़ा नहीं, गधा। हिमार गधा, सॉरी जी, हिमार हम्म गधा, आदमी का हम्म गधा। हाँ जी, नेक्स्ट। बैतु हामिदिन, हामिद का हम्म घर। शाबाश, नेक्स्ट। सय्यारतुल मुदीरी, प्रिंसिपल हम्म की गाड़ी। वेरी गुड। चलें अब मिंदी, हम बुलाते हैं। थैंक यू नाजिश। ये चलें, तस्मिया आ जाइए। बहुत कम लोगों ने अभी हैंड रेस किया हुआ है। नेक्स्ट उसमें जी मैम। ये तस्मिया कंटिन्यू कर दें, इसको ख़त्म करें। जी। हम्म चलिए। यहाँ ऊपर से बाबल मदरसती। नहीं, क्यों? वो तो हो गया ना। मिंदीलू जी जी जी, मिंदिलु अम्मारिन, अम्मारी। अम्मारिन। जी, मिंदिलु अम्मारिन, अम्मार का रुमाल। हाँ ठीक है, इस आगे। इस्मुत तालिबी, शाबाश। तालिबिन। हम्म तालिब का नाम, तालिब का बैतुल्लाही, नाम। अल्लाह हम्म का घर। गुड। फी किताब बल्लाही, फी अल्लाह की किताब। किताबल्लाही। किताबुल्लाही, किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। क्या मिस्टेक हो रही है? किताबुल्लाही मैम। क्यों? फी कौन सा हर्फ है? हरफे जर। हरफे जर। हरफे जर जब आ गया इसम से पहले, तो फिर वो किस हालत में चला जाएगा? किताब को आप किस हालत में लेके जाएंगी? मंसूब, हम्म मंसूब। क्यों? मंसूब क्या होता है? जबर होता है ना। मजरूर, किताबुल्लाही। मजरूर, हाँ मजरूर, किताबिल्लाही। ये तो जी। जब फी आ गया पीछे, तो आपने आगे जो भी इसम आ रहा है उसको मजरूर हालत में लेके जाना है, ठीक है। चलिए आगे भी कीजिए। मुजाफ, मुजाफ है
तब भी हाँ मजरूर होगा। एग्जैक्टली जी मुजाफ जो है वो हालत तब्दील करेगा। अच्छा चले जी मुझे ये जी। बताएं, मुरक्कब इजाफी में कौन लीडर होता है, मुजाफ या मुजाफ इलैह? मुजाफ मुजाफ। मुजाफ, मुजाफ लीडर होता है, ठीक है। और जी इराबी हालात भी मुजाफ के ही तब्दील होंगे। आप जी जी उसी को देखकर बताएंगी कि वो मुरक्कब किस हालत में है, ठीक है। जी जी चलें मैम। आगे चलें। मिन बैतिल मिन बैतिल मुदर्रिसी। शाबाश, ठीक है, आगे। हाँ जी। टीचर का घर, टीचर के घर से। हम्म। अला मकतबिल मुदर्रिसी। मुदीरी। मुदीरी जी। और हम्म। प्रिंसिपल के टेबल पर। हाँ जी, प्रिंसिपल की टेबल पर, शाबाश। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अल मुदर्रिसी को आपने क्यों मजरूर किया, मुदीरी को क्यों मिन मजरूर किया? मिन ये हरफे जर की वजह से अला और मिन। अच्छा, ये अल मुदीरी और अल मुदर्रिसी मिन और अला की वजह से मजरूर हैं, ऐसे ही है? जी जी। इसका असर होता है ना। किस पर होगा, कौन लीडर है? मैं इसके बाद मुजाफ इलैही मुजाफ पर। लीडर है या मुजाफ मुजाफ। लीडर है? तो आप फिर कैसे कह रही हैं कि अल मुदर्रिसी और अल नहीं मुदीरी ये मजरूर हुए? अल मुदर्रिस मुजाफ हुआ ना। अल मुदर्रिसी मुजाफ हो रहा है, तस्मिया क्या हो गया है? नहीं बैत बैत मुजाफ हुआ और अल मुदर्रिस मुजाफ इलैह। तो मिन का असर हाँ, में होता है ना, किस ये पर होगा? मिन का असर। ये तो मुजाफ इलैह इसलिए हरफे जर में गया ना मुदर्रिसी। जी, मुजाफ आप इलैह की अब वजह से। समझी, एग्जैक्टली जी मिन का असर सिर्फ मुजाफ तक महदूद मुजाफ- है जी जी। और ये मकतब मुजाफ इलैह तक की वजह से महदूद है मजबूर है। आला का असर। हाँ जी, अल जी आप मुदर्रिसी और अल समझे। मुदीरी इसलिए मजरूर हैं कि ये मुजाफ इलैहि हैं, ठीक है। जी जी ये जी इसीलिए मैं बार बार पूछती हूँ ये वाली बात अपने स्टूडेंट से, कि उनको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे कि अगर मजरूर हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, ठीक है। जी मैम। जी ठीक है, गुड हो गया। अब आ जाएं हमारे साथ शाजिया जज़ाकल्लाह। अकबर, रुमैसा आबिद। जी रुमैसा, चलें, ये दो नए नाम मुझे नजर आ रहे हैं। आइए रुमैसा। जी मैम। रुमैसा, आपको समझ में आया अब तक जो हमने किया? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें मैं पढ़ें, क्या जुमले हैं? जी हम्म। जी मैम, इकरा यानी कि पढ़ना, रीड पढ़ो। पढ़ना। पढ़ो। जी पढ़ो, ठीक। आईना बैतुल मुदर्रसी यानी कि कहाँ है? मुदर्रिसी। हाँ, अ, जी, मुदर्रिस का घर कहाँ है? शाबाश, क्या यानी जवाब मिल उस्ताद, रहा है? जी। हुआ बईदुन, वो दूर हम्म, है। वो दूर है, ठीक है। मुझे बताइए, जी। सवाल जो है, सवालिया जुमले में कोई मुरक्कब है? हम्म, जी मैम, है। बताइए कौन सा बई मुरक्कब है? बैतुल, मैम बैतुल मुदर्रसीना, हमारे पास मुरब्बे शाबाश, इजाफी कौन सा होगा। मुरक्कब है? मुरब्बे इजाफी। ठीक है, मुजाफ की इराबी हालत रफा क्यों है? रफा, मैम ये आईना की वजह। ऐना की वजह से रफा हालत है इसकी। अ, ऐना क्या है मैम, इस जुमले में? हम्म, ऐना को रुमैसा क्या मैम, बनाएंगी, कौन सा जुमला है ये, चलिए ये बताइए। ऐना बैतुल मुदर्रिस, ये कौन सा जुमला है? कौन सा पढ़ा है आपने अभी जुमला? इस्मिया जुमला है ना? जी जी मैम। है ना? जुमला इस्मिया जी है ना? बिल्कुल। जुमला इस्मिया में जी दो चीजें होती हैं, दो हाँ, हिस्से होते हैं जी उसके, मुब्तदा और खबर। जी मैम, मुब्तदा मुब्तदा और और खबर। खबर। तो अब आप ऐना को जी क्या बनाएंगी? मैम, आईना को मुब्तदा। ऐना कभी मुब्तदा नहीं बनता, इसमें अच्छा, इस्तिफाम कभी मुब्तदा नहीं बनते, ये हमेशा खबर बनेंगे, खबर ठीक, मुकद्दम, मतलब खबर वो मुकद्दम बन गया, मुकद्दम। ठीक है। जी और ठीक। बैतुल मुदर्रिसी क्या बना? मैम मुब्तदा मुअख्खर। शाबाश, मुब्तदा मौखर। अब मुझे बताइए कि आपने जब इसको मुब्तदा मौखर बनाया तो अब बैतू क्यों रफा हालत में है फिर? मैम क्योंकि मुब्तदा रफा की हालत में होती है, इस वजह से। शाबाश जी, ये है इसका जवाब।
ٹھیک ہے، ویری ٹھیک گڈ. ٹھیک جی جی اس لیے حالت رفع میں ہے کیونکہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، اس لیے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک میم. سمپل. اور اینا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ میم آئینہ میم خبر اس بن رہا ہے نا، میم جی جی اینا میم خبر بن میم رہا ہے نا. بالکل اب بالکل میم. آپ نے حرکت نہیں دیکھنی، جی آپ نے خبر کا قاعدہ یاد کرنا ہے. خبر کی کیا اعرابی حالت ہوتی ہے؟ میم میم رفع ہی ہوتی ہے ہاں جی، وسط میں. وہ بھی رفع ہی جی ہوتا ہے، ایگزیکٹلی. جی جی تو یہ بھی حالت رفع میں ہی ہے، مبنی اسما ہے نا. تو اب یہ جہاں بھی جی جی بیٹھیں گے میم. اس حساب سے یہ اپنی پوزیشن لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ کریں. ڈراپ ہو گیا ہے رمیسا کا. چلیں آ جائیں شازیہ. ویری گڈ رمیسا، آتی رہیں، پریکٹس کرتی رہیں، آپ کے سارے کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں گے. جی پڑھیے شازیہ، نیکسٹ جملہ. السلام علیکم باجی. ہم القرآن کتاب اللہ، قرآن ہم اللہ کی کتاب ہے. شاباش. اس میں کوئی مرکب نظر آ رہا ہے جملے میں آپ کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. کون سا مرکب ہے؟ مرکب مرکب اضافی. ویری گڈ. اس کو آپ کیا بنا رہی ہیں اس جملے میں، کتاب اللہ ہی کو؟ باجی یہ مضاف مضاف علیہ مل کے خبر بن رہا ہے شاباش، اور پرفیکٹ ہو گیا. القرآن القرآن مبتدا ہو جائے مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ مبتدا ہو پڑھیے. جائے. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ ہم اللہ کا گھر ہے. شاباش. اس میں کون سا مرکب نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس میں بھی مرکب اضافی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر. یہ ویری بھی گڈ. کیا مضاف بنا مضاف رہی ہیں علیہ آپ؟ مل کر خبر بن رہے، مضاف مضاف علیہ مل کر، خبر. اور کعبہ مبتدا. شاباش. چوتھا بھی پڑھیں جملہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس میں رسول شاباش. اللہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اور اس کو آپ اور جملے میں کیا مقام دے رہی ہیں، مرکب اس کو اضافی ہم کو؟ مرکب اضافی خبر بن رہا ہے، اور خبر بن مبتدا رہی ہے. گڈ، ویری گڈ، شاباش. اور نیکسٹ کریں. محمد. ہم خرج المدرس من غرفت المدیر. دیکھیے، مدرسو المدرس. نہیں پڑھنا شازیہ. میں نے بھی کیا سمجھایا تھا، تجدید کے نیچے حرکت زیر کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی باجی یہ مجھے اصل میں نظر نہیں آتا. پرنٹ میں ہے. اب دیکھیے، آپ یہاں دیکھ رہی ہیں تجدید کے اوپر زبر لگا ہوا ہے. آپ نے پڑھا نا ہاں صلی جی اللہ علیہ وسلم، جی وسلم میں بھی باجی. تجدید کے اوپر زبر ہے نا، تو آپ نے اس کو جی زبر باجی. پڑھا. ٹھیک ہے، ہاں جی اور تجدید کے نیچے حرکت ہو نا تو اس کو آپ زیر پڑھیں گی. ٹھیک ہے. زیری پڑھتے ہیں اچھا جی. جی، مدرسی. یہ جملہ جو ہے نا یہ فیلیا آ گیا. تو یہ تو آپ لوگوں نے چونکہ کیا ہوا نہیں ہے. بس مجھے یہ بتائیں، جی. اس جملے میں آپ کو کوئی مرکب نظر آ رہا ہے؟ من غرفت المدیر، مدیر شاباش. کے کمرے سے. یہ اس میں مرکب اضافی بن رہا ہے. کتنے مرکبات نظر آ رہے ہیں آپ کو اس جملے میں؟ نکلا. کتنے مرکب ہیں اس میں؟ من غرفت المدیری میں کتنے مرکب ہیں؟ باجی اس میں دو. یہ مین شاباش. مرکب جاری ہاں، ہو جائے گا، اور غرفت ویری المدیر گڈ. مرکب مرکب جاری بھی اور مرکب اضافی بھی. اضافی. مضاف حالت جر میں کیوں گیا؟ مضاف من کی وجہ سے، مرکب من کی جاری وجہ آ رہی سے. کی وجہ شاباش. سے. من کی وجہ سے، حرف جر من کی وجہ سے. ویری گڈ شازیہ، بہت اچھے. شمشاد بیگم آئیے. تھینک یو شازیہ. جی تھینک یو، جزاک اللہ. شمشاد بیگم جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پڑھیے اگلا جملہ. ہاذا ہوں ہاذا بیت حامد. ہوں ہوں جی میم، بس ایک منٹ. جی، چھٹا جملہ. حاذا بیت حامد. اچھا، ہاذا بیت حامد. ہوں ہاذا یہ حامد کا گھر ہے. ہوں وذالک بیت خالد، اور وہ بیتو. ہوں بیت بیتو ذرا چشمہ میں تھوڑا پرابلم ہے. ہوں وہ خالد کا گھر ہے. خالد کا گھر ہے. شاباش. کتنے جملے پڑھے آپ نے؟ دو جملہ ہے، واو بیچ میں ہے. شاباش. پہلا جملہ یہ ہو گیا اور دوسرا جملہ یہ ہو گیا. پہلے جملے میں کوئی مرکب ہے؟
जी बैतु हामिदिन शाबाश। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है। गुड। और ये बैतु हामिदिन इस जुमले में बन क्या रहा है? खबर बन रहा है जी। शाबाश। दूसरे जुमले में कोई मुरक्कब है? हाँ बैतु खालिदिन, क्या बन रहा है जुमले में? ये भी खबर बन रहा, मुरक्कब इजाफी। शाबाश। पहले जुमले में हाजा और दूसरे जुमले में जालिका को क्या बना रही हैं? ये मुब्तदा है इशारा। हाजा कौन सा इशारा है? करीब का, दूर का? करीब का, करीब का, वो बईद का, जालिका। जालिका बैत का है। यहाँ हाजिही क्यों नहीं आया? ये मुजक्कर है बाजी, बैतु। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे। अगला पढ़ें। आई आइनु अम्मारिन फिर तालिबुन। से गौर करें, गौर से देखें। अच्छा, आइनु अम्मारिन, इब्नु सॉरी, अम्मारिन। थोड़ा ना मेरा चश्मा प्रॉब्लम। इब्नु अम्मारिन हम्म तालिबुन, हम्म अम्मार का बेटा तालिब इल्म है। वब्नु शाबाश। यासिरिन ताजी यासिरिन ताजिरुन, हम्म और यासिर का बेटा ताजिर है। शाबाश, परफेक्ट हो गया। मुझे बताइए, यहाँ भी दो जुमले हैं, ऐसे ही है ना? जी बाजी, इन दो दोनों जुमले। जुमलों में आप मुझे मुब्तदा निकाल के बता दें बस। अच्छा, इब्नु जो हो गया वो मुब्तदा है दोनों में, और अमारिन तालिबुन ये हो गया खबर, और यहाँ यासिरिन ताजिरिन ये भी खबर हो गया। अच्छा, आपने यासिरिन ताजिरुन को खबर बना दिया। ये यासिरिन ताजिरुन को खबर कैसे बना रहे हो आप? यासिरिन मजरूर क्यों है और ताजिरुन मरफू क्यों है? शमशाद, थोड़ा गौर करें, क्या गलती कर रही हैं आप? सॉरी बाजी, सॉरी सॉरी सॉरी, इब्नु अमारिन है, सॉरी। हाँ हाँ, ये हो अब आपने गया। मुरक्कब पहचानना है। जी जी, तालिबुन मुरक्कब हो गया। पहचानना है। हाँ जी, हाँ इब्नु अम्मारिन मुब्तदा हो गया। ठीक है। जी जी, हाँ ये मुरक्कब इसी है। तरह वब्नु यासिरिन यहाँ दूसरा मुब्तदा हो गया। ठीक है। मुजाफ मुजाफ इलई। ठीक है, गुड हो गया, शाबाश। ओके जी, आए उम्मे माज। जी उम्मे माज, आइए अगला जी जुमला करें। जी। पढ़िए। बैतुल बैतुल मुदर्रिसी बईदुन व बैतुत ताजिरी करीबुन। तर्जुमा। मुदर्रिस का घर दूर है और हम्म ताजिर का घर करीब है। ठीक है, इस जुमले में मुझे सिर्फ खबर निकाल के बता दें। जी, खबर है बईदुन और करीबुन। दो शाबाश। और मुब्तदा कौन सा मुरक्कब है? मुब्तदा बैतुल मुदर्रिसी और बैतुल ताजिरी, ये शाबाश, ये रकब इजाफी है जी। मुरक्कब इजाफी। जी, अगला जुमला। हादा मिफ्ताह सय्यारती हम्म अइन मिफ्ताह बैती। ये हम्म सय्यारा यानी गाड़ी की चाबी गाड़ी। है। हम्म जी, और ये गाड़ी की चाबी है। अच्छा, मिफ्ताहुल बैती यानी घर की चाबी कहाँ है? घर की चाबी कहाँ है? शाबाश। अब ये दो दो जुमले हैं, इनमें आप मुझे खबर बता दें, दोनों में कौन खबरें कहाँ हैं इनकी? अच्छा, पहले जुमले में खबर क्या है? एक मिनट। हादा तो हम्म खबर जी, खबर बताइए क्या है? हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती में खबर किसको बनाएंगी आप? हादा खबर हाजा को मुकद्दम। आप खबर मुकद्दम बना रही हैं। अच्छा, हाजा क्या है? नहीं, इशारा है ना? सॉरी, हादा जी जी, वो मारिफा होगा ना। मारिफा होता हादा है। हादा ठीक, ये तो हादा मुब्तदा बन गया। ऐसे ही है ना? जी जी, ये मुब्तदा होगा। हादा हाँ, मुब्तदा, ठीक है, हादा अब मुब्तदा खबर निकालिए। खबर मिफ्ताह निकालिए। मिफ्ताह ठीक है, सय्यारती ये खबर होगा। इस जुमले में आपने ये खबर निकाल दी। दूसरे जुमले में खबर निकालिए। ऐन ये हम्म खबर है। ऐना खबर है। शाबाश। यहाँ पर ऐना खबर मुकद्दम है, क्योंकि ऐना इसमें इस्तिफाम है जो सदारत चाहता है
इसमें इस्तिफाम कभी भी मुब्तदा नहीं बनकर आते, हमेशा खबर बनकर आते हैं, ठीक है। तो दूसरे जुमले में मिफ्ताहुल बैती क्या बन रहा है फिर उम्मे मास? ये मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा मौखर, अच्छा, जी जी ठीक जी। है, मुब्तदा मौखर। जब आपका मुब्तदा बाद में आ रहा है तो आपने ये लाजमी कहना है, खबर मुकद्दम मुब्तदा मौखर, ठीक है। क्लियर हुई बात? गुड यस। हुआ, माशाल्लाह, वेल डन। आइए नादिया अमीन, थैंक यू मिमाज। जी अस्सलाम नादिया, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम उस्ताजा। सलाम। जी कंटिन्यू करें। मन हम्म मन अंता या वलदु अना हम्म इब्नु अब्बास अना इब्नु अब्बासिन अब्बासिन, हाँ जी, क्या अब्बासिन। तर्जुमा करेंगी? कौन है आप ए लड़के? हम्म उस्ताजा उसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ए लड़के कौन है आप? हाँ जी, आप कौन हैं? ए लड़के आप कौन हैं या तुम कौन हो, ठीक है, वो अपना तारुफ दे रहे हैं कि मैं अब्बास का कौन हूँ, बेटा हूँ। बेटा हूँ। अब मुझे ये बताइए, पहले जुमले में और दूसरे जुमले में मुब्तदा किसको बनाएंगी? उस्ताजा मन मन अंता को मुब्तदा बनाएंगे। हम्म मन अंता, तुम कौन हो, ए लड़के। या वलदू तो निदा मुनादा है, इसको तो छोड़ दीजिए। मन अंता को देखिए, मन इसमें इस्तिफाम है, जी उस्ताजा। अंता जमीर है, मारफा होता है, जमीर मारफा होते हैं ना, जमायर। जी जी उस्ताजा। तो जी फिर जी जी। मारफा मुब्तदा बन गया, यहाँ मुब्तदा मौखर, और मन यहाँ नकरा होने की अ, वजह से खबर मुकद्दम हो गया, जी उस्ताजा। ठीक है। उस्ताजा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगी निकल जाएगी। अना इब्नु अब्बासिन में बताइए मुब्तदा किसको बना रही हैं? उस्ताजा इसमें अना जो है वो मुब्तदा है, और इब्नु शाबाश, अब्बासिन जो है वो अ, खबर है, खबर है। परफेक्ट हो गया जी। अगला कीजिए। वब्नु मन हुआ, हम्म और किसका बेटा है वो? हुआ इब्नु शाबाश। खालिदिन, हम्म वो खालिद का बेटा है। जी, मुझे बताइए कि पहले जुमले में कोई आपको मुरक्कब नजर आ रहा है? उस्ताजा ये है अना इब्नु अब्बासिन में इब्नु अब्बासिन जो है ना वो नहीं नहीं, मुरक्कब मैं इजाफी है। ये 11 नंबर का जो देखिए दो जुमले हैं, वब्नु मन हुआ और हुआ इब्नु खालिदिन, ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना। इसमें मुझे बताइए वब्नु मन हुआ में कोई मुरक्कब है? जी उस्ताजा इब्नु मन जो है वो मुरक्कब इजाफी है। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब इसमें है कि इस इब्नु जो है मन वो की हमारे एराबी पास हालत क्या है? हम्म उस्ताजा ये जो है ना मुजाफ इलैह है, तो यहाँ ये मजरूर हालत शाबाश, में है। मुजाफ इलैहि है। तो अब मुझे बताइए वब्नु मन को क्या बनाएंगी और हुआ को क्या बनाएंगी? उस्ताजा इब्नु मन जो है वो हमारे पास मुब्तदा हो जाएगा, अच्छा, और हुआ? और हुआ नहीं उस्ताजा, हुआ को मुब्तदा बना देंगे, शाबाश, और हुआ मुब्तदा इब्नु। मौखर बनेगा जी। और जी इब्नु मन उस्ताजा खबर मुकद्दम हो जाएगी। खबर मुकद्दम, वेरी गुड, शाबाश। और जो सात जुमला है जवाब जो है उसमें खबर किसको बना रही है? उस्तादा उसमें खबर जो है ना इब्नु खालिदिन को बना देंगे। परफेक्ट हो गया। अगला जुमला भी कर दें। आइना मस आइना मस्जिदु रसूलुल्लाहि रसूलिल्लाही। हम्म रसूलिल्लाहि। हम्म जी, अल्लाह क्या के तर्जुमा रसूल कर? का मस्जिद कहाँ है? हाँ जी, अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है? मुझे बताइए इसमें आप मुब्तदा किसको बनाएंगी? उस्ताजा मस्जिदु रसूलिल्लाहि। शाबाश, ये पूरा आपको मुब्तदा बनेगा और आईना खबर मुकद्दम बनेगा। अब ये जी जो आप उस्ताजा। देख रही हैं कि मस्जिदु मुजाफ है, ठीक है, जी जी। जी उस्ताजा। रसूली हालत जर में मुजाफ इलैहि है, और फिर आगे लफ्जुल जलाला फिर हालत जर में नजर आ रहा है और ये भी मुजाफ इलैहि है।
ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोग अभी पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी में, इसको पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। जी और उस्ताजा ये लास्ट टाइम पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया है आप अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने। समझ अब में देखिए आया। ये जो जी जी दरमियानी जी का सर। जो दरमियानी इस्म रसूल जो है, इसके दो स्टेटस हैं। ये जी मुजाफ भी उस्ताजा। बन रहा है और मुजाफ इलई भी बन रहा है, दो स्टेटस ले रहा है, ठीक है। पीछे जी वाले के उस्ताजा। लिए ये मुजाफ इलई बन रहा है और अगले वाले के लिए ये मुजाफ बन रहा है, ठीक है। जी तो उस्ताजा। ये जी पेचीदा उस्ताजा। मुरक्कब इजाफी पूरे का पूरा खबर बनेगी। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको डिटेल से समझेंगे। आप इसका जवाब पढ़ लें। इस क्लास खत्म करते हैं फिर। जी क्या हुआ जवाब है फिल इसका? मदीनती हुआ हम्म फिल मदीनतिल तिल मुनव्वरती। मुनव्वरती। हाँ जी, क्या जवाब हुआ इसका? वो मदीना मुनव्वरा में है। हाँ जी, ये कौन सा मुरक्कब है अल मदीनतिल मुनव्वरती? उस्ताजा ये मुरक्कब तौसीफी है। शाबाश। और ये हालत जर में क्यों है? उस्ताजा ये मुरक्कब पहले फी आया है ना, हाँ जी, फी की हर्फ वजह से। जर, उसकी वजह से। फी की वजह से मदीना जी जर में गया है या अल मुनव्वरा जर में गया है? उस्ताजा मुजाफ जो है वो जर में गया है, और मुजाफ तो नहीं मुनव्वरती है। तो वो तो नहीं आपने मुजाफ नहीं, मुजाफ सॉरी क्यों सॉरी कहा आपने? मुरक्कब तौसीफी है ना ये। मौसूफ जो है। जी 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 हाँ मौसूफ हाँ सिर्फ जी, आया है, मौसूफ जो है वो हालत जर में फी की वजह से गया शाबाश। है। मौसूफ गया है हालत जर में, और सिर्फ हमेशा मौसूफ को फॉलो करती है, इसलिए वो हालत जर में गई है। ठीक है क्लास, वेरी जी गुड उस्ताजा। माशाल्लाह। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद आप लोगों को क्लियर होगा, आई एम श्योर। ख़त्म करते हैं क्लास इस दुआ के साथ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।